Hello everyone, welcome to MMR Study. In this video, we will be discussing about the social studies. You may have a doubt in your mind that why should we learn social studies? What is the need to learn this boring subject? Yes, you may feel boring while learning this subject. But actually it is not a boring subject, students. It is an interesting subject. Why it is interesting? Because it helps us to understand the developments that are taking place in our society and the world, as well as their roles in shaping the future of the nation. So let us discuss in detail. So before starting our topic, I would like to request to everyone to please subscribe this channel and watch the video till the end. So firstly, we will come to know about the word sociology. It is the combination of two words, that is socio and society. Society comes from the socio. Socio means society. Okay. Then logy means studies. Then Jerome said that social science is the study of human relations. Okay, so it is the study of people in relation to each other and to their world. It is an issue focused in inquiry-based, interdisciplinary subject that teaches us, the students, as well as how to think and function. So सोशल स्टडीज़ किससे रिलेटेड है बच्चों के? सोसाइटी से रिलेटेड है. सोसाइटी से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ पढ़ेंगे आप वो सोशल स्टडीज़ में आएगा और ये रिलेशन अपना दूसरों के साथ कैसा है वो बताता है अपने को. इन्वायरमेंट में अपन कैसा कनेक्टेड है वो बताता है अपने को. और जो भी इश्यूज़ रहेंगे, जो भी इंक्वायरी बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरीज रहेंगे, डिसिप्लिनरीज इन द सेंस कौन सा भी अगर प्रॉब्लम आया तो उसको डिसिप्लिन्ड वे में कैसा सॉल्व करेंगे वो बताता है अपने को. और उसके ऊपर थिंक कैसा करना, उसके ऊपर फंक्शन कैसा करना. और फंक्शन जब भी आप करेंगे तो पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट में फंक्शन करेंगे आप. और फंक्शन जब प्रेजेंट में करेंगे तो वो ऐसा फंक्शन करेंगे जिसका कनेक्शन पूरा फ्यूचर से रहेगा. So, in other words, it teaches us how to become a better citizen in a society. Now, the scope of social studies. Scope of sociology includes economics, physiology, geography, communication skills, anthropology, history, and political science. But apart from these, we are going to learn and focus on 4 aspects. Only 4 we are having in our syllabus. Only 4 aspects, 4 elements, that is history, civics, economics and geography. First of all, let us discuss about the geography. The word geography can be broken into 2 basic elements, that is geo and graphy. Geo means earth and graphy means to write about something. Okay, so it is the study of places and their relationships between people and their environment. तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में. ओके, तो जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज है, यह हर चीज़ इसके अंदर आपको अर्थ से रिलेटेड, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड रहेगा, हर चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी में. देन कमिंग टुवर्ड्स द हिस्ट्री. History is the study of the past events. Past events in the sense we may come to know about something that has happened in the past. Okay, so inquire करेंगे आप, कोई चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आपके दादी, परदादी, कोई भी रह दो, ग्रैंड मदर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को उनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग आप लोगों को स्टोरीज सुनाते. और हेरोडोटस was the first father of the history. Okay. Now coming towards to the civics. Civics is the study of rights and duties of citizenships like voting, while voting is the right and privilege of citizenship. It is also a duty and responsibility of every citizen in the democratic process respect the rights, beliefs and opinions of others. Benjamin Franklin was the father of civics. तो सिविक्स में आप आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स में अगर कोई आए, किसी का एक्सीडेंट कर दिए तो फिर उसको प्रोटेक्शन कौन देंगे? गवर्नमेंट देंगे. ओके, अगर कोई किसी का रॉबरी हो गई
जैसे कि किसी के पास चोरी हो गई तो उनको कोई कौन प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कि कोई किसी का प्रॉपर्टी का केस है तो उनको भी कौन प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस ही देंगे। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर सिविक्स के अंदर आपको आपके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में, जैसे कि वोटिंग है, आप अपने तौर पे कोई किसी को लीडर को इलेक्ट कर सकते, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Then next, coming towards to the economics. Economics is concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. जो भी प्रोडक्शन, जैसे कि लाइक लक्स का एक एग्जांपल ले लिया, तो उसको क्या होगा, सबसे पहले तो उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, छोटे छोटे जो होलसेल रिटेल शॉप्स है उसके ऊपर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर कंज्यूमर्स को कलेक्ट करेंगे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, आप अपने सर्विसेज देंगे। तो मार्केटिंग से और बिजनेस से, बजट से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेंगी वो आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वाज सैमुएल्सन was the father of the economics. Then sociology, just now we have discussed about the sociology, that socio means society, logy means study of, to study. Okay, so we are going to learn here about the social studies, about the society. Society is nothing but sociology. Okay, now objectives of the social studies. Objectives means the aims and the goals. To understand our environment, find out its problems and be able to solve them. So first objective is that अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि आपका आजकल का एक इशू है, फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो ये एक इशू आ गया तो हर कोई इसको लेके परेशान हाल है। तो इसको हेल्प करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपके सामने आ गए हुए हैं और उसके साथ आप कैसा जी रहे हैं और उसके ऊपर लोग कैसा वर्कआउट कर रहे हैं वो आपको समझाता है कौन, सोशल स्टडीज। देन नेक्स्ट, टू हेल्प एंड अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ आवर कंट्री एंड बी एबल टू ओबे देम। अब जैसे कि गवर्नमेंट क्या करे, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, क्योंकि ये जो डिसीजेस स्प्रेड हो रहे हैं उससे ओवरकम हो। तो क्या क्या रूल्स बनाए वो लोग के, फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, या तो फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, आप ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए थे जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आपके ऊपर अप्लाई किए गए। तो इसको ओबे करना हर किसी का एक रूल बन गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, it helps to understand the importance of hard work and honesty which is in the society. With the help of the society, कैसा डॉक्टर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर पुलिस है और गार्बेज क्लीनर है, ये सब लोग कैसा हेल्प करे डिसीजेस से बाहर निकलने के लिए। सो इसकी भी इम्पोर्टेंस आपको सोशल स्टडीज बताता है। एंड देन नेक्स्ट, टू एक्वायर डिजायरेबल स्किल्स टू सॉल्व अवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फिर ये लोग क्या सजेस्ट करें कि इवन आपके रिलेटिव से भी आप दूर रहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। हर किसी की डिज़ायर है कि वो लोग डिसीजेस से ओवरकम होना और वो लोगों की डिज़ायर के हिसाब से आप भी अपने आप को सेफ क्वारंटाइन कर देना, अपने घर में स्टे रहना। ओके, सो उससे क्या होगा, आपको सेफ्टी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड यूजफुलनेस ऑफ बीइंग गुड सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। सो जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई करे, उसको हर कोई फॉलो करे और डॉक्टर जो भी एडवाइस दिए उसको भी फॉलो करे, जिसकी वजह से इस डिसीजेस से पूरे जने ओवरकम हुए, तकरीबन ओवरकम हुए, और जिससे कि ये मालूम हुआ कि आप एक गुड सिटीजनशिप के हिसाब में है अपने कंट्री में। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ लर्निंग सोशल स्टडीज़। अब किस तरीके से आप सोशल स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। इंक्वायरी मेथड, आप इंक्वायर कर सकते हैं कोई चीज़ की। इंक्वायरी करने से आपको हर चीज़ की नॉलेज मिलेंगी, जैसे कि आपको एग्जांपल्स के तौर पे न्यूज़पेपर्स है, टीवी चैनल्स है, रेडियोज़ है, इंटरनेट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जिसके थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते देखते भी आप उससे सीख सकते हैं। फील्ड ट्रिप, कहीं जाके भी आप सीख सकते हैं कोई जगह दूसरी तरफ, जैसे कि आपको मस्कती डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम करना है तो आप वहाँ के डायरी के फैक्ट्री को जा सकते हैं और वहाँ पर से इंफॉर्मेशन निकाल के उस चीज़ की नॉलेज आप गेन कर सकते हैं।
जैसे कि लर्निंग थ्रू कॉन्सेप्ट, कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई एक टॉपिक आप लेके उसके थ्रू भी आप उसका पूरा इंक्वायरी कर सकते हो, उसके ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको फील्ड ट्रिप के तौर पे भी आप वो कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं। अगर वही वो नहीं, फिर भी आपको ये सब नहीं हो रहे तो कम से कम आप डिस्कशन मेथड से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब आप अपने एल्डर्स से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो उसको डिस्कस करने से आपको नॉलेज गेन हो सकती है। सो ये सब सोशल स्टडीज़ के मेथड्स हैं जिसको अप्लाई करके आप बेस्ट अपना स्टडीज़ कर सकते हैं। सो होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.